تحریر محمد سعید عباس۔ یہ آدھے کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی عظیم و شان عمارت تھی، جس کے گرد لوہے کی مضبوط جالیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور دو جگہوں پر سرچ ٹاور بھی بنے ہوئے تھے جن میں موجود مسلح محافظ ہوشیار کھڑے تھے۔ اس عمارت کے ساتھ ساتھ 3 کلومیٹر علاقے کو جالی دار دیوار سے گھیر کر بند کر دیا گیا تھا۔ یہ خلائی ادارے واسا کا ایک اسپیس پوائنٹ تھا جہاں اکثر مختلف راکٹس اور خلائی جہاز چھوڑے جاتے تھے۔ عمارت سے کچھ فاصلے پر ایک دیو ہیکل لانچر پیڈ موجود تھا، جس پر ایک بڑا سا دیو ہیکل راکٹ ایک مصنوعی سیارے کو خلا میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ عمارت کے اندر گہما گہمی کا سما تھا، سب لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ ماحول میں بے چینی اور سرگرمی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بڑے ہال میں دیواروں پر بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھیں، جن میں وہ لانچر پیڈ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک لمبا تڑنگا شخص ہاتھ میں وائر سیٹ پکڑے لوگوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس کا نام جمی روک تھا۔ وہ اس اسپیس سینٹر کا انچارج تھا۔ آج ایک خفیہ مشن مکمل کرنے کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ تھا کہ یہ راکٹ خلا میں کیا چیز لے کر جا رہا ہے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ خلا میں موجود اسپیس سینٹر کے لیے کچھ اہم مشینری اور سامان اس راکٹ کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ سر، آپ کا فون ہے۔ ایک لڑکی نے جمی روک کے سامنے آ کر کہا، جو اس وقت سامنے لگی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر جمی روک ایک جانب رکھے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور بولا، جیمی سپیکنگ۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر میرے کام کا کیا ہوا؟ جمی نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ تم اپنے بینک سے اپنا اکاؤنٹ بیلنس معلوم کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، جمی روک نے کہا، صرف 6 منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور واپس مرکزی کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے کچھ ٹائپ کیا اور اگلے ہی لمحے اس کے سامنے اس کے اکاؤنٹ کی تفصیل آ گئی، جس میں آج ہی $5 لاکھ کا ایک چیک جمع کروایا گیا تھا۔ اپنا اکاؤنٹ بیلنس دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کمپیوٹر آف کیا اور اسکرینز کی طرف آ گیا، جہاں اسکرین پر نظر آنے والے لانچر پیڈ پر موجود وہ راکٹ اڑنے کے لیے تیار تھا۔ الٹی گنتی شروع ہو گئی اور ایک زوردار آواز کے ساتھ راکٹ کے نیچے سے آگ کے شعلے اور دھواں بلند ہونے لگا۔ لانچر کے مختلف حصے جن کے ذریعے راکٹ کو سہارا دیا گیا تھا ادھر ادھر گرنے لگے، اور راکٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ فضا کو چیرتا ہوا تیزی سے اوپر کی جانب بڑھنے لگا، اور کچھ دیر بعد وہ خلا کی حدود میں داخل ہونے لگا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو اور جمی روک کو مبارکباد دینے لگے۔ آدھا گھنٹہ مزید اسپیس سینٹر میں رکنے کے بعد جمی روک اپنی گاڑی میں اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے کے قریب موجود بیل بجانے کے لیے اپنی انگلی اس جانب بڑھائی۔ اسی وقت اسے ایک آواز سنائی دی، پلیز مسٹر جمی، میری بات سنیے۔ جمی نے سر گھما کر اس جانب دیکھا۔ وہاں ایک شخص اوور کوٹ اور ہیٹ پہنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی جمی کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جمی کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم؟ ہاں، میں۔ اس شخص نے جواب دیا، کیونکہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہاری چھٹی۔ یہ کہہ کر اس نے سائلنسر لگا ہوا ریوالور جمی روک پر تان لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، کھٹ کی ہلکی سی آواز ابھری اور جمی وہیں زمین پر لڑک گیا، اور کوٹ والا شخص آرام سے چہل قدمی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک فون بوتھ تک پہنچ گیا۔ اس نے سکہ نکال کر فون میں ڈالا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے ایک آواز سنائی دی، کام ہو گیا؟ جی ہاں۔ دوسری جانب سے کسی نے کہا، ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ۔ بہت بہتر۔ اوور کوٹ والا بولا، اور پھر ایک جانب پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک گاڑی کے قریب جا کر دروازہ کھولا اور چابی لگا کر جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ کی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور ساتھ کھڑی دوسری گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔ اسپیس سینٹر واسا میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی تھی۔
वासा के डायरेक्टर्स की एक हंगामी मीटिंग जारी थी। सब लोग मौजूद थे और उनकी नजरें सामने स्क्रीन पर मौजूद एक अजीबो-गरीब मस्नूई सैयारे पर लगी हुई थीं, जिसके गिर्द 2 बाजू निकले हुए थे और वो गहरे नीले शीशे की तरह चमक रहे थे। ये किसने भेजा है? ये वो चीजें तो नहीं जो हमने खलाई स्टेशन के लिए भेजी थीं। ये तो कोई मस्नूई सैयारा है, वहां मौजूद एक शख्स ने कहा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वासा के चीफ डायरेक्टर मिस्टर कोम ने कहा। हमने कल एक रॉकेट खला में भेजा था, जिसके जरिए यह मस्नूई सैटेलाइट वहां पहुंचा है। यह सब कुछ जिमी रोक का किया धरा है। वही इस स्पेस सेंटर्स का इंचार्ज था। उसने किसी के साथ मिलकर यह मस्नूई सैटेलाइट स्पेसशिप की जगह खला में भेज दिया है। ओह, ये तो इंतहाई संजीदा मामला है। आपको जिमी रोक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अफसोस है कि हम अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल जिमी रोक को इसके घर के सामने कत्ल कर दिया गया है। क्या? वहां बैठे हुए सब लोगों के मुंह से बेइख्तियार निकला। उसी वक्त उन्हें मस्नूई सैयारे में हरकत महसूस होने लगी। उसके दोनों बाजू जोर से घूमने लगे और एक जानिब से छोटी सी पाइप नुमा नाली नमूदार हुई। ये क्या है? मिस्टर कोम के मुंह से निकला। दूसरे ही लम्हे इस नाली से नीले रंग की शुआएं निकलकर इन लोगों की जानिब लपकती नजर आई। ओ नहीं, ये कोई खौफनाक हथियार है और इससे जमीन पर किस जगह फायर किया गया है। हमें पता करना चाहिए कि फायर कहां हुआ है। ये कहकर सब लोग तेज रफ्तारी से हॉल से बाहर की जानिब जाने लगे। ये एक पुल था जो 2 शहरों के दरमियान आमदोरफ्त के लिए दरिया पर तामीर किया गया था। इस वक्त भी कई 100 गाड़ियां इस पुल पर जा रही थी। इस पुल का नाम स्टार ब्रिज था। ब्रिज के दोनों जानिब और दरमियान में सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम था, ताकि किसी किस्म की दहशतगर्दी ना हो सके। ब्रिज की लंबाई 2.5 किलोमीटर थी। बुर्ज पर मौजूद सिक्योरिटी इंचार्ज रिचर्ड जदीद दूरबीन के जरिए एक जानिब खड़े होकर बुर्ज का जायजा ले रहा था। रोजाना की तरह आज भी सुबह सिक्योरिटी पर आने के बाद वो पूरे 2 घंटे पुल का खुद जायजा लेता था। दूरबीन में देखते देखते अचानक उसकी नजर समंदरी परिंदों के एक ग्रोह पर पड़ी, जो फजा में एक साथ तरतीब से परवाज में मसरूफ थे। इसी लम्हे उसे एक नीले रंग की रोशनी तेज रफ्तारी के साथ पुल की जानिब बढ़ती दिखाई दी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया और एक खौफनाक धमाका हुआ। वो नीली रोशनी पुल के दरमियान में आ टकराई। पुल का वो हिस्सा एक लम्हे में राख के ढेर की मानिंद समुंदर में जा गिरा, जबकि जगह जगह आग लग गई। कई गाड़ियां पुल के टूटे हुए हिस्सों से निकलकर समुंदर में जा गिरी। चारों तरफ एक अजीब चीखो पुकार शुरू हो गई। रिचर्ड के होश व हवास काबू में आए तो वो बेइख्तियार पागलों की तरह पुल के उस हिस्से की तरफ दौड़ने लगा जहां वो शुआ आकर टकराई थी। रात 8 बजे का वक्त था। सब लोग अपने घरों में टीवी देखने में मसरूफ थे। अचानक तमाम टेलीविजन की स्क्रीनें खराब हो गई और फिर जब दोबारा राब्ता बहाल हुआ तो सब लोगों ने एक अजीब शख्स को अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, जिसका आधा चेहरा इंसानी था और आधे पर फौलादी मास्क लगा हुआ था। वो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, ऐ उस दुनिया के लोगों, गौर से सुन लो। उस दुनिया पर हुकूमत करने वाला किंग तुमसे मुखातिब है। आज से दुनिया में मौजूद तमाम हुकूमतें, तमाम मुल्क खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ किंग की हुकूमत होगी पूरी दुनिया पर। यह कहकर उसने पागलों की तरह कहकहा लगाना शुरू कर दिया। मैं तुमको 3 दिन की मोहलत देता हूं। तुम सब मेरी बात मान लो और इस दुनिया का बादशाह मुझे तस्लीम कर लो। अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना देखो। इसी वक्त स्क्रीन पर स्टार ब्रिज नजर आने लगा। लोगों ने आसमान से आने वाली शुआ को देखा, जो तेजी से पुल से जा टकराई और पुल का वो हिस्सा एक लम्हे में राख के ढेर की मानिंद समंदर में जा गिरा। कई गाड़ियां तबाह हो गई और बहुत जानी नुकसान हुआ। एक बार फिर किंग का चेहरा नजर आने लगा। सिर्फ 3 दिन, और हाँ, कल तुम लोग दुनिया की बुलंद तरीन इमारत स्काईफिल टावर का भी हशर देख लेना। कल कोई भी उसमें ना जाए, वरना अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। किंग ने कहकहा लगाया और उसका चेहरा स्क्रीन से गायब हो गया। टीवी नशरियात दोबारा बहाल हो गई।
लोग किंग की तकरीर सुनकर खौफजदा होकर बाहर निकल आए। पूरी दुनिया में हर तरफ किंग का तस्करा शुरू हो गया। अखबारात ने किंग की तकरीर पर खसूसी ज़मीमें शाया किए। स्काईफील्ड टावर को खाली करने के ऑर्डर जारी हो गए। हजारों कैमरों और मसनूई सैयारों का रुख स्काईफील्ड टावर की जानिब हो गया। खुसूसी खबरें दी जाने लगीं। दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ये एक बड़ी सी मेज थी जिसके गिर्द 6 कुर्सियों पर मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। आखिरी कुर्सी पर किंग बैठा हुआ था। उसने नजरें घुमाकर मेज के गिर्द मौजूद लोगों को देखा और बोला, जल्द ही पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत कायम हो जाएगी और तुम सब मुख्तलिफ इलाकों में मेरे वजीर आजम होगे। किंग उन लोगों को मुख्तलिफ इलाकों के बारे में समझाने लगा। उसी दौरान दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसने नीले रंग का यूनिफॉर्म पहन रखा था। किंग ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा और बोला, क्या बात है कैप्टन, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। सर, हमारे मसनूई सैयारे की जानिब एक और सैयारे से रैपिड मिसाइल फायर किए गए थे जिन्हें मैंने अपने सैयारे में मौजूद लेजर गन से तबाह कर दिया है। अच्छा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम फौरन स्काईफील्ड टावर को निशाना बनाओ। कल के बजाय हम आज ही उसे तबाह करेंगे। ठीक है सर। ये कहकर वो आदमी वापस कमरे से बाहर निकल गया। ये बेवकूफ लोग नहीं जानते कि उनका वास्ता किससे पड़ा है। बस अब कुछ ही दिनों में मैं उस दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। अभी उसने कहकहा लगाना शुरू ही किया था कि कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज सुनकर किंग और उसके साथी बेइख्तियार अपनी जगहों से उछल पड़े। ये कैसे हो सकता है? किंग चीखा और बेइख्तियार कमरे से बाहर की जानिब लपका। नसीम और शाकिर एक छोटी सी लॉन्च में मौजूद थे। उनकी लॉन्च समंदर के बीचों बीच खड़ी थी। दोनों के जिस्मों पर गोताखोरी के लिबास थे और कमर पर जदीद पतले ऑक्सीजन सिलेंडर बंधे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर समंदर में छलांग लगा दी। तैरते हुए वो समंदर की गहराई की तरफ बढ़ने लगे। दोनों का ताल्लुक मुल्क की खुफिया फोर्स से था। कल उन्हें यह मिशन सौंपा गया था। किंग ने टेलीविजन पर जो तकरीर की थी उसके सिग्नल का मरकज उनके मुल्क की समंदरी हदूद बनता था। काफी गौर व खौज के बाद इन दोनों अफराद को यहाँ भेजा गया था ताकि वो इस जगह को चेक कर सकें कि समंदर में ये सिग्नल कैसे निकले। ये दोनों डेली सन में रिपोर्टर की हैसियत से काम करते थे, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि उनका ताल्लुक मुल्क के एक हसास कौमी सलामती के खुफिया इदारे से है। आखिरकार वो दोनों तैरते हुए इस जगह तक पहुंच गए जहां छोटी छोटी पहाड़ियां थी। शाकिर ने हाथ के इशारे से नसीम को इशारा किया। नसीम ने अपनी आंखों पर चढ़ी ऐनक पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। उसके चेहरे पर मौजूद ऐनक के शीशों पर सुर्ख रंग की एक और पतली सी तह आ गई। उसने देखा कि एक पहाड़ के गिर्द नीले रंग का एक पतला सा तार एक जानिब बढ़ता चला जा रहा था। यूं लगता था जैसे किसी ने उसे जोर से खींचकर कहीं बांध रखा हो। वो बाल बाल बचे थे। ये एक हिफाजती तार था। अगर वो बेख्याली में उससे टकरा जाते तो उनके जिस्म के परखचे उड़ जाते। वो दोनों तैरते हुए उस तार तक पहुंच गए। उन मखसूस शीशों की वजह से ही वो उसे देख पा रहे थे। अब क्या किया जाए? नसीम ने शाकिर से इशारे से पूछा। इसी लम्हे उन्हें दूर से कोई चीज पानी के अंदर तेजी से अपनी जानिब बढ़ती हुई नजर आने लगी। दोनों फौरन एक चट्टान की ओट में हो गए। उन्होंने देखा कि वो एक एयरक्राफ्ट नुमा जदीद आबदोज जैसी कोई चीज थी। इसे देखकर यूं लगता था जैसे दो छोटी छोटी कश्तियों को आपस में जोड़कर आबदोज की शक्ल दी गई हो और इसके ऊपर वाले हिस्से को शीशे से ढांप दिया गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में एक जानिब बढ़ रही थी। शाकिर ने देखा कि वो चमकता हुआ तार अचानक बंद हो गया। उसी की वजह से उसे ऑफ किया गया था। शाकिर ने नसीम को इशारा किया और वो दोनों तेजी से तैरते हुए उस आबदोज नुमा कश्ती तक पहुंच गए। उन्होंने उसके नीचे से बाहर निकले हुए हिस्सों को मजबूती से थाम लिया। आबदोज के आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो तार दोबारा चमक रहा था। आबदोज बढ़ते बढ़ते एक बड़ी सी चट्टान की जानिब पहुंच गई। पानी में एक हल्की सी आवाज पैदा हुई
और चट्टान में एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। वो दोनों आबदोज के साथ मौजूद थे और फिर वो उस दरवाजे में दाखिल हो गए। अब उनके सामने एक हैरत अंगेज मंजर था। ऐसा लगता था कि वो किसी बड़े से फौलादी शहर से गुजर रहे हों। जगह जगह बड़े बड़े फौलादी टावर बने हुए थे और कई मशीनी सुतून मौजूद थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म की मशीनें लगी हुई थीं। ओह मेरे खुदा, ये तो पूरा शहर बना हुआ है, हैरत अंगेज। शाकिर ने नसीम की जानिब देखते हुए सोचा। कुछ देर बाद वो इस फौलादी शहर के एक दरवाजे में दाखिल हो गए। अब आबदोज आगे बढ़ने लगी। उन दोनों ने उस आबदोज को छोड़ दिया। वो आबदोज आगे बढ़ते हुए उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वो दोनों भी तैरते हुए उसके पीछे पहुंच गए। एक जगह उन्हें पानी की सतह कम होती महसूस हुई। दोनों ने उस जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों उस जगह मौजूद थे। उन्होंने सर निकाल कर देखा। सामने उस आबदोज जैसी कई आबदोजें लाइन में खड़ी थीं, जैसे कोई कार पार्किंग हो। दोनों तेजी से पानी से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने तैराकी के लिबास उतार दिए। अब उनके जिस्म पर मौजूद स्याह रंग के लिबास मौजूद थे। दोनों एक जानिब बने रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। एक जगह उन्हें एक दरवाजा नजर आया। शाकिर ने उसे खोलकर अंदर झांका। नसीम भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। अब दोनों के सामने एक हैरत अंगेज मंजर था। उनके सामने बहुत बड़ा एक गुंबद नुमा हॉल था जिसमें बेशुमार मशीनें लगी हुई थीं और बहुत से लोग इन मशीनों के सामने काम में मसरूफ थे। वो दोनों हॉल के एक तरफ काफ़ी ऊपर की जानिब राहदारी नुमा हिस्से में मौजूद थे। हाँ, ये तो कोई समंदरी स्टेशन है। हमें सबसे पहले अपने लिए इन लोगों जैसे यूनिफॉर्म का इंतज़ाम करना होगा ताकि हम लोग इनमें घुल मिल सकें। तुम ठीक कहते हो। इसी लम्हे उन्हें कुछ लोग इस जगह की जानिब बढ़ते हुए नजर आए जहां वो दोनों मौजूद थे। आने वाले 2 अफराद थे। नसीम, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। इन पर काबू पाकर हम इनके यूनिफॉर्म हासिल कर सकते हैं। ठीक है। दोनों दरवाजे से बाहर निकलकर इसके इर्द गिर्द लगकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जैसे ही वो दोनों अफराद दरवाजे से बाहर निकले, दोनों ने उन पर काबू पा लिया। कुछ देर बाद दोनों यूनिफॉर्म में मौजूद इस दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। दोनों अफराद को बेहोश करके उन्होंने हाथ पांव बांधकर आबदोज के दरमियान छुपा दिया था। दरवाजे में दाखिल होने के बाद दोनों ने अपने हाथों की घड़ियों को आपस में मिलाया। फिर बोले, ठीक है, 1 घंटे बाद हम दोनों को इसी जगह वापस मिलना है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत बढ़ गए। इस वक्त एक मुल्क में तमाम ममालिक के नुमाइंदों की एक हंगामी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें किंग के खिला में भेजे गए एक मसनूई सैयारे को तबाह करने की कोशिश के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह खिला में मौजूद मसनूई सैयारे पर 2 मीज़ाइल फायर किए गए, लेकिन वो मीज़ाइल रास्ते ही में उस सैयारे से निकलने वाली शुआओं के जरिए तबाह कर दिए गए। और किंग ने इस कोशिश के नतीजे में इंतकामी कार्रवाई करते हुए एफिल टावर पर अपने दिए गए वक्त से पहले ही खौफनाक शुआएं फायर करके उसे तबाह कर दिया था। सिर्फ चंद मिनटों में वो शानदार स्काईफेल टावर राख के ढेर में तब्दील हो गया। पूरी दुनिया ने अपने टेलीविजन पर ये खौफनाक मंजर देखा। तमाम ममालिक के नुमाइंदे आइंदा के लिए सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी किंग के इस मुतालबे को मानने पर तैयार न था। पूरी दुनिया पर अजीब दहशत और खौफ फैल गया था। सब लोग पागल किंग से खौफजदा थे जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था। किंग भागता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ कैप्टन भी वहां पहुंच गया। उनके सामने कमरे की दीवार पर एक स्क्रीन नजर आ रही थी जहां छोटी छोटी बड़ी आबदोजें थीं। वहां बहुत से लोग मौजूद थे और स्ट्रेचर पर 2 आदमी बेहोश पड़े हुए थे। ये कैसे हो सकता है कि कोई अजनबी मेरे वाटर वर्ल्ड में दाखिल हो जाए और पता भी न चले? फौरन पता करो कि कौन लोग यहाँ दाखिल हुए हैं, उससे पहले कि वो लोग वाटर वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाएं। मैं उन्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। सर, आप फिक्र ना करें, हमने मालूम कर लिया है। ये नंबर 203 और नंबर 311 हैं। जो लोग भी हैं वो इनके यूनिफॉर्म में होंगे।
तमाम हिस्सों के इंचार्जों को इत्तला दे दी गई है। अब तक वो लोग पकड़े जा चुके होंगे। अचानक कैप्टन के हाथ में मौजूद वायरलेस नुमा आले से आवाज आई। उसने कान के पास ले जाकर उसे सुना। सर मुबारक हो, वो पकड़े जा चुके हैं और मेन हॉल में मौजूद हैं। ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। किंग ने कहा और वो दोनों तेजी से कदम उठाते हुए एक जानिब चल दिए। नसीम और शाकिर उन लोगों में घुल मिल गए और मुख्तलिफ मशीनों के पास जाकर उन्हें यूं देखने लगे जैसे उन्हें चेक कर रहे हों। इस दौरान उन्होंने उन मशीनों में अपने पास मौजूद कैप्सूल नुमा बॉम्ब डाल दिए। ये इंतहाई ताकतवर बॉम्ब थे और 1 घंटे बाद खुद ब खुद फट जाना था। एक बॉम्ब शाकिर ने एक लिफ्ट के पैनल में डाल दिया था जिसमें लोग ऊपर नीचे आ जा रहे थे। शाकिर उस वक्त एक मशीन के सामने मौजूद था कि अचानक एक शख्स ने उसे मुखातिब करके कहा, ए तुम रुको। शाकिर को खतरे का एहसास हुआ। वो तेजी से एक जानिब बढ़ा। वो शख्स चीखा, इसे पकड़ लो। ओह, मुझे पहचान लिया गया है। शाकिर ने सोचा, खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हारी जिंदगी की कोई जमानत नहीं देंगे। एक शख्स ने चीख कर कहा। उसके हाथों में एक जदीद गन मौजूद थी। शाकिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। 2 आदमियों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। इसी दौरान उसने देखा कि चंद आदमी नसीम को भी पकड़कर ला रहे थे। इसी दौरान किंग भी वहां पहुंच गया। फौरन पता चलाओ, इन लोगों ने ये खौफनाक बम यहाँ रख दिए हैं। किंग ने चीख कर कहा, बताओ तुम लोगों ने ये बम कहाँ रखे हैं? खुद तलाश कर लो। तुम तो दुनिया के बादशाह हो ना, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। गुस्से से भरा हुआ किंग नसीम की ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ ये सच है, मैं ही कंग हूँ। ये देखो मैं कैसे मालूम करता हूँ। ये कहकर उसने कैप्टन से कहा, सर्च ब्रेड लाओ। जी बेहतर। कुछ देर बाद कैप्टन आया तो उसके हाथ में एक मशीनी परिंदा नुमा चीज मौजूद थी जिसके 2 पर फैले हुए थे। किंग ने उन दोनों की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, देखो अब ये कैसे तुम्हारे लगाए हुए बम यहाँ से बरामद करता है। ये कहकर उसने उसमें लगे हुए 2 बटन दबा दिए। वो मशीनी परिंदा अपनी जगह से बुलंद हुआ और मुख्तलिफ मशीनों की जानिब बढ़ गया। एक मशीन पर जाकर वो रुक गया और उसकी आंखों से नीले रंग की सी रोशनी निकलकर उस मशीन पर पड़ने लगी। इस मशीन को चेक करो, किंग ने कैप्टन से कहा। कुछ देर बाद उस मशीन से वो बम निकाल लिए गए। इसी तरह करके 5 बम बरामद कर लिए गए, लेकिन शाकिर को पता था कि एक बम बाकी है जो लिफ्ट के पैनल में छुपा हुआ था। किंग ने 5 बम एक मशीन में डाल दिए। उस मशीन से रोशनी के झमाके से हुए और बंद हो गई। तुम्हारे बम तो नाकारा हो गए, अब तुम क्या करोगे? किंग ने दांत निकालते हुए पूछा, आप अजीम हैं, आप वाकई इस दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल हैं। नसीम ने कहा और बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, मैं आपके कदमों को छूना चाहता हूँ। बेशक हमें मार दें, मगर एक दफा मैं आप जैसी शख्सियत के पांव जरूर छूना चाहूंगा। नसीम की बात सुनकर किंग बहुत खुश हुआ और बोला, छोड़ दो उसे, तुम्हें इजाजत है पांव छूने की। नसीम तेजी से आगे बढ़ा, किंग के कदम छूने के लिए झुका और दूसरे ही लम्हे उसने कुलाबाजी खाई और किंग की गर्दन के गिर्द एक पतला सा तार नजर आने लगा जिसका दूसरा सिरा नसीम के हाथ में था। वो चीख कर बोला, खबरदार, अगर किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं इस तेज तार से किंग का गला काट दूंगा। ये कहकर उसने तार पर दबाव डाल दिया तो किंग की गर्दन से खून बहने लगा। छोड़ दो उसके साथी को, तुम क्या चाहते हो? इसने फंसे फंसे लहजे में कहा, तुम हमें यहाँ से हिफाजत के साथ निकाल दो, लेकिन तुम हमारे साथ जाओगे, ठीक है? इस दौरान शाकिर भी नसीम के पास पहुँच गया। ठीक है, लेकिन कोई गलत हरकत न करना, किंग ने कहा। वो दोनों किंग को लिए हुए आप दोस्त तक पहुँच गए। अब मुझे छोड़ दो। किंग बोला, नहीं, तुम हमारे साथ जाओगे और जब हमें किनारे पर उतार दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो दोनों एक बोट नुमा आबदोज में बैठ गए। कुछ देर बाद वो किंग की वाटर वर्ल्ड से बाहर निकल आए। इसी लम्हे उन्हें गड़गड़ाहट सी सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? किंग ने बौखला कर कहा, तुम्हारा वाटर वर्ल्ड तो गया। क्या? कैसे? तमाम बम तो मैंने नाकारा बना दिए थे। वो बौखला कर बोला, एक रह गया था। शाकिर ने कहा, तुम जैसे कई लोग आए हैं दुनिया में किंग,
जो दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देखते रहे लेकिन कुछ ना कर सके, और तुम भी उन लोगों में से एक हो। वो इस जगह से काफी दूर निकल आए थे। उनकी आबदोज़ समंदर की सतह पर उभर आई थी। दूर समंदर में उन्हें एक पानी की बुलंद दीवार बनती नजर आई, जिसमें आग और धुआं भी शामिल था। मेरा वाटर वर्ल्ड, किंग ने उसे देखते हुए कहा और सदमे से बेहोश हो गया। ओह, इसमें तो जदीद वायरलेस सेट भी मौजूद है। मैं हेडक्वार्टर से राब्ता करता हूँ। शाकिर ने कहा और फिर वायरलेस सेट लेकर खुफिया फोर्स के हेडक्वार्टर से राब्ता करने लगा। कुछ देर बाद बहुत से जंगी तैयारों ने उन्हीं बोटनुमा आबदोज़ को घेर लिया। दूसरे दिन तमाम अखबारात किंग की गिरफ्तारी और वाटर वर्ल्ड से मुताल्लिक खबरों से भरे हुए थे। पूरी दुनिया में उनके इक़दाम पर नसीम और शाकिर के मुल्क को बहुत पजीराई मिली। सबसे ज्यादा हैरत लोगों को उस मुल्क के अखबार डेली सन पर थी, जिसने किंग के वाटर वर्ल्ड की तस्वीर अपने सफ़े अव्वल पर छापी थी। ये तस्वीर शाकिर ने अपने पास खुफिया कैमरे से ली थी।